Assalamualaikum students. Training very happy. There might be some disturbance in audio, but I have to make the video and I will try to speak loudly. You try to understand the thing. We are starting a new chapter, and the chapter is very important, and you all have the knowledge of it little bit. Every one of us using it. Every one of is using it. Without it, it becomes too much difficulty for us to live now. So our chapter is, can you guess? It is current electricity. It is electricity. All the things now over here is because of electricity. In this chapter, what we are going to cover is given potential difference, conductor, insulator. Insulator means bad conductor, electrical resistance, Ohm's law, connection of resistor, effective resistance. These all things we will cover, plus some numericals we will solve. If we solve the numericals more, we will understand the chapter more. Let's begin the chapter. So what are the use of electricity? Every one of us know electricity is the very most important thing, and our life depends for reading, for writing, for communication, heating. This is the motor, this is in industry. Everything we need, this is refrigerator, we need electricity. Oven, mixer, fan. You can imagine, okay, you can count by yourself. Very easy to say. Not only human, but also animal is also using electricity. Do you know? Human is, okay, physically we see electricity. There is electricity inside our body. You know, the impulse is given by brain to other part of the body is through electrical impulse. This electrical impulse. आपको कभी कुछ हाथ में झटका लग गया तो आप सोचते कि हाँ अच्छा मुझे यहाँ पे कुछ चुभ रहा है, सोच रहा अच्छा मैं हटाता हूँ. नो, इट इज वॉलेंटियर एक्शन. इतना स्पीड में कौन सिग्नल दे रहा है? इट इज गो थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. ये हमारे बॉडी में नर्व्स इसको बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू क्या करते हैं? सिग्नल देते हैं हमारे बॉडी को. एनिमल ऑल्सो दे ऑल्सो यूज फिजिकली. एनिमल क्या करेंगे? वो कैच करो तो झटका देंगे, इलेक्ट्रिकल शॉक देंगे आपको, या दूसरे एनिमल को पकड़ने के लिए जो एनिमल यूज करते हैं. बहुत सारा फिश इसमें पाया गया वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स यूज करते हैं, किसी को डिफेंस के लिए, किसी को अटैक करने के लिए यूज करते हैं. द फिश लाइक दिस they are using even for giving the bright color, defense and all this purpose. So we have now potential and potential difference. These terms are, technical terms are very important in electrical chapter. We have to understand these terms. I started this chapter. Before this chapter there was a broad power energy. Since this chapter can be used by 10th standard students also, because already I started electric chapter over there. So I want they can see this video also. So there are two terms, potential and potential difference. What is the meaning of it? It is the form of energy. It is the form of energy. जो स्टोर रहता है बॉडी में, एक ऑब्जेक्ट में, एक सब्सटेंस में एनर्जी स्टोर रहता है, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. कैसे स्टोर रहेगा? सपोज मैं ये माउस को ऊपर से गिराता हूँ तो ये क्या होगा? आवाज होगा. किसी के सर पे गिरा होगा तो चोट लगेगा. यस, ये माउस ऐसे अभी तो रुका हुआ है, जस्ट मैं छोड़ दिया, मैंने पुश नहीं किया इसको तो छोड़ दिया तो क्या होगा? ये कोई छीट करेगा. अगर मैं पत्थर लिया, बड़ा पत्थर लिया और ऐसे सर पे रखा और छोड़ दिया, आई विल गेट हर्टेड, मुझे चोट लगेगा. तो कौन सा एनर्जी था उसके अंदर, वो पत्थर के अंदर जो हट गया? मैंने तो फोर्स नहीं किया था, मैंने तो सिर्फ छोड़ दिया उसे और वो हट कर रहा है. आप स्प्रिंग दो, स्प्रिंग उसको क्या करें? प्रेस करो और जब रिलीज इट तो स्प्रिंग का इट विल जंप. किसने को फोर्स लगाया वो जंप करने के लिए?
इट हैज एनर्जी, के अंदर एनर्जी है। कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। यस, टू टाइप ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। जब मोशन होता है तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। जब वो स्टोर रहता है, उसका शेप में ऐसा बना के हम लोग शेप बना दिए स्प्रिंग का, को प्रेस करके और स्प्रिंग को रिलीज कर दिए तो इट विल मूव। तो उसमें जो एनर्जी स्टोर रहता है पोजीशन की वजह से, उसकी शेप की वजह से, उसको बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। उसी से वर्ड आया पोटेंशियल डिफरेंस, उसी से आया वर्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें समझ में आएगा। लेट्स डू द एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे क्या बताया? दो प्लास्टिक का बोतल लिए, दिस इज द प्लान, ऐसा बॉल आप समझ सकते हो, स्टैंड है, ट्यूब है, वाटर है, पानी है। तो अभी क्या करें इसमें? ये प्लास्टिक के बोतल में क्या किए? पानी डाले, एक में पानी नहीं डाले। एक प्लास्टिक का बोतल को क्या किया? थोड़ा ऊंचा रखिए, पाइप को नीचा रखिए और उसको बॉल लगा दिए प्लान, ताकि पानी रखते जब फ्लो नहीं हो। अगर मैं इसको हटा दूं, प्लान को हटा दूं, तो पानी किस में से किस में जाएगा? इसमें से इसमें जाएगा कि इसमें से इसमें जाएगा? इसमें जाएगा। ऑफकोर्स पानी इसमें से इसमें जाएगा। रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि अब एक नॉर्मल आदमी क्या बोलेगा? अरे इसका हाइट ऊंचा है, इसी के लिए इसमें से पानी इसमें जाएगा। एग्जैक्ट रीजन का ग्रेविटेशन हो सकता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। जब हम लोग ऊंचा रख रहे हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू इट इज। पानी क्या होगा? इसमें से इसमें फ्लो होगा। कब तक फ्लो होगा? जब तक कि दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाए। दोनों का पानी का लेवल अगर बराबर हो जाएगा तो पानी फ्लो होना बंद हो जाएगा, पानी फ्लो होना बंद हो जाएगा। अगर मैं अगर ये नहीं लगाता, पानी जाता क्या? नहीं, पानी नहीं जाता। अगर मैं दोनों को बराबर रखता, पहले दोनों में पानी बराबर रखता है, हाइट सेम हाइट का, पानी कभी भी बराबर है लेकिन हाइट कम बेसी है, हाइट ऊपर नीचे। अभी हाइट में भी बराबर रखा, यहाँ पे है चलो यहाँ तक रखा, ये भी जब नीचे आएगा तो इतना हो जाएगा, या इतने रखते हैं। पानी जाएगा इसमें से इसमें? नहीं जाएगा, पानी इसमें नहीं फ्लो होगा क्योंकि हाइट दोनों का सेम है, पोटेंशियल दोनों का सेम है। पोटेंशियल सेम है तो पानी फ्लो होगा? नहीं होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस करने के लिए अगर हम लोग करते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों का, इसलिए पानी फ्लो हो रहा है। और कब तक फ्लो होगा? जब तक दोनों का हाइट बराबर होगा। हाइट बराबर मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है, पोटेंशियल बराबर हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस जब तक रहेगा तो पानी फ्लो होगा। इजी इंस्ट्रूमेंट है, एकदम इजी है। इसी को हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, इसी को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू समझते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी कैसे फ्लो होता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सपेरिमेंट। आपको समझ में आया होगा एक्सपेरिमेंट कि यहाँ पे क्या क्या रीजन हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो पानी फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो पानी फ्लो नहीं होगा। और कनेक्टर लगना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस है लेकिन कनेक्टर नहीं है तो पोटेंशियल पानी फ्लो होगा नहीं होगा। क्या पानी के अंदर मूव हो रहा था ऑटोमेटिक अपने पे? हाँ हो रहा होगा। पानी बॉटल ये बॉटल के अंदर मूव हो रहा होगा? हाँ हो रहा होगा। लेकिन जब हमने इसको डायरेक्शन दिए, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिए, तो ये एक डायरेक्शन में मूव होने लगा ना। सारे वाटर मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में मूव हो रहे, यहाँ से यहाँ मूव हो रहे। जब ये नहीं आ रहा था तब भी मूव हो रहे थे, इनसाइड इधर उधर जा रहे होंगे। लेकिन जब मैंने क्या किया, डायरेक्शन दे दिया उसको, इसको वाटर मॉलिक्यूल को, कैसे? पोटेंशियल डिफरेंस डाल के, दोनों बॉटल का पोटेंशियल को अलग कर दिया, है ना। इसमें पोटेंशियल ज्यादा है, इसमें पोटेंशियल कम है, क्योंकि ये हाइट पे है इसलिए पोटेंशियल ज्यादा है, इसमें पोटेंशियल कम है। पोटेंशियल ज्यादा से कम में वाटर फ्लो होगा, पोटेंशियल ज्यादा से हायर से लोअर में फ्लो होगा। तो ये ट्यूब के थ्रू वाटर इधर आ रहा है, ट्यूब इज अ कनेक्टर, कंडक्ट कर रहा है, पानी को पास होने के लिए हेल्प कर रहा है। सेम एज हैपन इन इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे ही कुछ होता है इलेक्ट्रिसिटी में। देखते हैं, देखो पानी जब हम लोग खोल दिए तो पानी क्या होगा, इधर जाने स्टार्ट हो गया। कब तक जाएगा? फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। इसका लेवल ज्यादा है, इसका लेवल कम है। कब तक जाएगा? हायर टू लोअर है। जब बराबर हो जाएगा तो इट विल स्टॉप।
अभी ये एक्सपेरिमेंट जो हम लोग किए उससे हम लोग क्या डिराइव किए कि जब पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे होता है, पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे होता है उसको हायर पोटेंशियल बोला जाता है, और जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको लोअर पोटेंशियल बोला जाता है। तो चार्ज भी क्या होता है, एनर्जी क्या होगा, हायर टू लोअर में जाएगा। क्या होगा, हायर टू लोअर में जाएगा। जैसे पानी हायर टू लोअर में जा रहा था, तो यहाँ पे चार्ज भी हायर टू लोअर में जाएगा। हायर कौन है, पॉजिटिव, लोअर कौन है, नेगेटिव। हमेशा एनर्जी आप मान लो, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो रहा है, हायर टू लोअर में जा रहा है। हायर कौन है, माना गया पॉजिटिव है, बोले हायर पॉजिटिव क्यों माना गया, ऐसा आप क्वेश्चन पूछ सकते, नेगेटिव को क्यों नहीं माना गया। अच्छा, जो साइंटिस्ट ने इसका डिस्कवरी कर रहा था उसने इसको ऐसे ही माना, उसने इसको बोला कि पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है। उसको इलेक्ट्रॉन इस सब के बारे में उस टाइम नहीं मालूम था, तो वी थॉट कि पॉजिटिव से नेगेटिव में ही जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना सोचने का नहीं है। उसको एज्यूम किया गया कि पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो दूसरे साइंटिस्ट आगे जो कंटिन्यू हुआ उसको ऐसे रखा गया कि पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है। पोटेंशियल पॉजिटिव का हायर है और नेगेटिव का लोअर है, तो कैसे जाएगा, हायर से लोअर में जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है। क्लियर, ये रॉकेट साइंस नहीं, तो माना गया, उसको हम लोग भी अभी मान रहे हैं। वी आल्सो कंटिन्यू हिज असम्पशन, जो साइंटिस्ट ने ये माना था कि पॉजिटिव हायर पोटेंशियल है और नेगेटिव लोअर पोटेंशियल है। तो यहाँ पे एनर्जी हायर टू लोअर में जा रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। अब ये लेवल क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलेंगे। वहां पे तो वाटर पोटेंशियल का, वाटर का था, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, जब चार्ज होता है, चार्ज डिफरेंस होता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्ड ऐड करते हैं पोटेंशियल में। ये पोटेंशियल डिफरेंस था किसका था, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रिसिटी का, चार्जिंग का, चार्ज का था ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलेंगे। पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज जैसे पानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जा रहा था, इसी तरह पॉजिटिव चार्ज हायर टू लोअर पोटेंशियल में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ड्यू टू कंडक्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। हाँ, अभी ये देखते हैं ये क्या बताया। इलेक्ट्रिसिटी में होता है क्या कि जो चार्जिंग ये सब क्या होता है, आप एटम चैप्टर पढ़े होंगे स्टैंडर्ड में, तो एटम में आपने पढ़ा होगा ना कि एटम हैज 5 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड, एटम का शेप ऐसा है, ये बीच में क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन का न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। ये चारों कौन रिवॉल्व हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का चार्जिंग क्या है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्जिंग क्या है, नेगेटिव चार्जिंग है। Now you can see इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट में होता है ना, बाहर ऑर्बिट में उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा दूर जाएगा, ये ऑर्बिट एक और ऑर्बिट बना लेते हैं जिससे दूर है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जितना न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या वीक होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। तो जितना दूर जा रहा है, ये पॉजिटिव है क्योंकि इसमें प्रोटॉन है, तो जितना दूर जाएगा तो क्या होगा, इसका अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, ये ज्यादा इसको पकड़ती है, इसको उससे कम और इसको सबसे कम, इस
इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का फोर्स क्या लग रहा है, कम लग रहा है, इस पे उससे ज्यादा लग रहा है, इस पे सबसे ज्यादा लग रहा है। इसमें कम होने की वजह से क्या होता है कि जो बाहर के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन बिग फोर्स ऑफ न्यूक्लियस की वजह से ये क्या होता है, बाहर चला जाता है, ये बाहर चला जाता है, घूम जाता है। सपोज घर में अब्बू नहीं है तो बच्चे बॉयज क्या करते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, घूमते ना, इधर उधर घूमते, अब्बू आते हैं तो अब्बू से दूरी है, मतलब वो बॉयज के लिए क्या होता है, आजादी हो जाता है, आजादी हो जाता है। उसी तरह अब्बू यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये बॉयज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो बॉयज क्या होंगे, घर पे बैठे रहेंगे, थोड़ा भी हुआ तो चांस मिलता है, और भी हुआ इधर बाहर घूमने के लिए, तो ये रीजन होती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बाहर घूमता है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज होता है, क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होती है, और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन मूविंग होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये मेटल में होता है, मेटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। आप मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़े होंगे, 8 में था। मेटल क्या करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन देते हैं, नॉन मेटल नहीं देते हैं, तो मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करता है, चार्ज कैरी करता है, क्या करता है, करंट कैरी करता है। मैंने बताया आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हायर टू लोअर जाता है, हायर कौन होगा, पॉजिटिव, लोअर कौन होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव में मतलब कौन है, नेगेटिव किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से, नेगेटिव किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है, लोअर टू हायर होता है, लोअर टू हायर होता है। लेकिन करंट का हायर टू लोअर होता है, अपोजिट है, दोनों अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और चार्ज बोला मैंने, करंट क्या होता है, हायर टू लोअर होता है। ऐसा क्यों, मैंने आपको पहले कहानी सुनाया था कि जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया, अज्यूम किया, उस टाइम में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो उसने अज्यूम किया कि पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा करंट, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा। फिर बाद में इलेक्ट्रॉन पता चला, अरे इलेक्ट्रॉन तो क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है। तो उसके जो पहले जो असम्पशन था उसको क्रॉस नहीं किया गया, चेंज नहीं किया गया। क्या कहा गया कि जो करंट है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा इलेक्ट्रॉन ना, यहाँ पे नेगेटिव है मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लोअर टू हायर जा रहा है, और करंट हायर टू लोअर जा रहा है। तो जहाँ पे हायर है मतलब हायर पोटेंशियल है, जहाँ पे लोअर है मतलब लोअर पोटेंशियल है, मतलब जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे हायर पोटेंशियल, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वहां पे लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल से लेके हायर पोटेंशियल के पास जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये असम्पशन का माना गया था। अच्छा देखिए, जब बिजली कड़कती है मतलब लाइटनिंग होता है तो क्या होता है, हमारा जो क्लॉट होता है ना वो नेगेटिव चार्ज होता है, क्लॉट क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और हमारा अर्थ क्या होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बताओ कौन हायर है कौन लोअर है, चलो बोलो जल्दी। क्लॉट नेगेटिव चार्ज और अर्थ पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, पोटेंशियल हायर किसका रहेगा, किसका रहेगा, अर्थ हायर रहेगा और क्लॉट का लोअर रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन किधर से जाएगा, लोअर टू हायर जाएगा, और करंट हायर टू लोअर जाएगा। तो जब लाइटनिंग होता है तो इलेक्ट्रॉन क्लॉट में से जो कि लोअर पोटेंशियल पे अर्थ पे आते हैं, अर्थ क्या है, हायर पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन क्लॉट से अर्थ पे आती है, हमें लाइटनिंग दिखती है वो। The lightning cloud is at higher potential, lower potential, negative to positive charge. अब डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस है
अलग अलग है, इसको क्या बोलते हैं लोग, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। दिस टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 10 में काम आएगा, 12 में, 11 में काम आएगा, आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। ये टेक्निकल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये 10 में भी है, 11 में भी है, 12 में भी पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दिस इज वेरी बेसिक। पोटेंशियल डिफरेंस अभी हम लोग समझ लिए, अभी देखते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे होता है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ए क्या है, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट बी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब इसको क्या किए, पॉइंट ए पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया, हायर पोटेंशियल, पॉइंट बी क्या है, नेगेटिव है तो ये क्या हो गया, लोअर पोटेंशियल, है ना। अब इसको उस टाइम जो पानी का एक्सपेरिमेंट किए थे वाटर का, तो हमने क्या कहते हैं, एक पाइप लगाए थे, है ना। पाइप का क्या फंक्शन था, पानी को पास करने का, पानी को पास करने का। तो यहाँ पे नहीं, हमने क्या किया, यहाँ पे पाइप नहीं लगाया, यहाँ पे लोग वायर लगाए, है ना। वायर को क्या काम है, इलेक्ट्रॉन को पास करने का, इलेक्ट्रॉन को पास करने का, है ना। तो ये वायर किसका बना हुआ, ये मेटल का बना हुआ, किसका, मेटल का। क्यों मेटल का, क्योंकि मेटल के पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है मेटल के पास, है ना। तो मेटल क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन पास करेगा। ये वायर क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग वायर बोलते हैं। क्यों, इसका काम क्या है, कंडक्ट करना, मतलब पास करवाना, अपने से पास करवाना, इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग वायर। तो यहाँ पे इंसुलेटिंग लिखा हुआ है, कवर क्या है, इंसुलेटिंग है। अब यहाँ पे कवर क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे अगर कवर नहीं लगाते तो हमें करंट मार सकता था, शॉक लग सकता था, या तो चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव है, ये अर्थ में चला जाएगा, क्योंकि अर्थ क्या है, जीरो पोटेंशियल पे, अर्थ क्या है, जीरो पोटेंशियल पे, तो चार्ज इधर से निकल इधर चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, इधर से भी इधर चला जाएगा। तो इंसुलेटिंग मतलब वो कंडक्ट नहीं करेगा, कंडक्टर ये पास करता है, कंडक्टर का अपोजिट क्या है, इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग वो कंडक्ट नहीं करता, वो पास नहीं होने देता है, बोले कि नहीं इलेक्ट्रॉन इधर से पास नहीं होगा मेरे इधर से। तो ये वुड है, रबड़ है, प्लास्टिक है, ये सब क्या करता है, इंसुलेटर होता है, वो कंडक्ट नहीं करने देता है। तब बताओ चार्ज इधर से किधर जाएगा, चार्ज हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ये हाइयर है ये लोअर है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, करंट किधर जाएगा, करंट किधर से जाएगा, हाइयर टू लोअर। इलेक्ट्रॉन किधर से जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के पास जाएगा। गॉट एवरीवन? When these two conductors are connected by a wire, तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ एट द टू एंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, flow from B to A. This flow will continue until unless the conductor A and B have same potential. अभी कब तक होगा, जैसे पानी में मैंने बताया था हाइट बराबर होगा, हाइट बराबर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया, उसी तरह यहाँ पे भी कब तक फ्लो होगा, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का बराबर हो जाए, इक्वल होगा। इक्वल कब होगा, जीरो होगा तब। अगर इसका 2 रहा, इसका 3 हुआ, इसका 3 है इसका 2 है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 1 का हो गया। जब दोनों बराबर का हो गया, ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, इसका 2 - 2 कितना हुआ, 0। जब दोनों का डिफरेंस मतलब अलग, जब दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 0 हो गया, तो चार्ज पास होगा, करंट पास होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन पास होगा फिर नहीं, इलेक्ट्रॉन भी पास नहीं होगा, क्योंकि दोनों में बराबर हो गया, तो इलेक्ट्रॉन भी पास नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन पास नहीं होगा तो करंट भी पास नहीं होगा। Only then will the flow of current electron will stop. अभी बताओ, जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था और करंट इधर आ रहा था, तो ये ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि इसमें भी काम लगना, कुछ भी चीज इधर से उधर करने में हमें क्या होता है, काम लगती है, वी डू द वर्क, हमें क्या होता है, एनर्जी लगती है उसके लिए। अब वर्क या एनर्जी दोनों सेम टर्म है, वर्क या एनर्जी दोनों सेम टर्म है, तो ये काम हुआ ना, अब काम करने की एनर्जी लग रहा है, तो वो एनर्जी है ना किसके, जब भी करंट इधर से इधर जा रहा है या इधर से इधर जा रहा है, हम लोग क्या हो रहा है, काम हो रहा है,
फंक्शन हो रहे हैं, एनर्जी लग रही है, तो वो एनर्जी जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा लगेगा, जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा एनर्जी लगेगा, है ना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा करंट क्या होगा, इधर से इधर जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखो सपोज इसका 8 रहा, इसका 2 रहा, 8 माइनस 2 कितना हुआ 6। अभी इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 4 हो गया, इसका 2 ही, अभी कितना हो गया डिफरेंस 2 का। तो जितना ज्यादा डिफरेंस है उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, उतना ज्यादा काम लगेगा, हमें काम करने पड़ेगा। यस, तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितना काम करने पड़ा, क्या चीज के लिए, क्या चीज से काम करे, चार्ज को हटा रहे ना, चार्ज ट्रांसफर करे, नेगेटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा है, नेगेटिव चार्ज पे खोले तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, और पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर आ रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा है, मतलब करंट इधर से इधर आ रहा है। करंट को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, करंट का डायरेक्शन बोलते हैं। तो करंट इधर आया मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर आया, नेगेटिव चार्ज गया इधर मतलब इलेक्ट्रॉन इधर गया। तो पॉजिटिव चार्ज कितना गया उसको क्या बोलेंगे, उतना काम हुआ, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा क्या हुआ करंट गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस का को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, या अभी एक और देख लेते हैं फॉर्मूला से पहले, स्लाइड है यहाँ पे क्या बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट है, सर्किट मतलब जिसके थ्रू, जो रूट के थ्रू करंट पास है, कंप्लीट रूट के थ्रू करंट पास हो रहा है उसको सर्किट बोलते हैं। अभी देखो यहाँ पे 1.5 वोल्ट है, वोल्ट इज द बीम इज पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या बताया 1.5 वोल्ट मतलब ये दोनों ए और डी, टर्मिनल ए और डी सेल है, ये बैट सेल है, ये दोनों में डिफरेंस कितना है पोटेंशियल का 1.5 वोल्ट का डिफरेंस है, कितना 1.5 वोल्ट का। अभी क्या होता है ना, इसके अंदर मैकेनिज्म होता है ऐसा कि आपस में अंदर नहीं जा सकता, ये आपस में अंदर नहीं जा सकता, बीच में डिस्कशन होता है, ऐसे से इंसुलेटर डालते हैं, केमिकल डालते हैं कि आपस में नहीं जा सकता, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव डैशिंग नहीं जा सकता। अगर हम लोग कोई वायर से जोड़ेंगे पॉजिटिव टू ए टू बी, पॉजिटिव टू नेगेटिव ए टू बी, अगर हम लोग जोड़े और बीच में क्या लगा दिए, बल्ब लगा दिए, तो क्या होगा, चार्ज इधर जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इधर ज्यादा हो गया, इधर कम हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा और करंट इधर से इधर आएगा, करंट इधर से इधर आएगा, है ना। जब करंट इधर से इधर आएगा तो क्या होगा, हम उसको बोलते हैं कि हमारा बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा। जब करंट पास होगा तो बल्ब ग्लो होगा। कब तक होगा, जब तक दोनों का डिफरेंस बराबर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना, ए और डी का डिफरेंस बराबर हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो बल्ब क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो रूट क्या है यहाँ पे, रास्ता क्या है, ए टू बी जाएगा, क्या करंट ए टू बी जाएगा, ए से बी आएगा, बी से सी में आया, बी से सी में आया, सी से डी में गया, देखो एरो किधर दिखा रहा है, डी में गया, करंट क्या जा रहा है, ए से सी, बी से सी से डी में जा रहा है, ये रूट है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, आप बताओ स्टूडेंट से, कितने का डिफरेंस है, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट में पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट है, ये पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है। इसके बीच में A to F, टर्मिनल A to F, व्हाट इज द डिफरेंस, 6 वोल्ट का। अब ये कैसे जा रहा है, यहाँ से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा करंट, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इसमें 2 बल्ब लगा दिए, जब करंट जाएगा तो बल्ब ग्लो होगा, करंट जाएगा तो बल्ब ग्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, बताओ इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, F to E, E to D, D to C, C to B and B to A। ये कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं हो जाए। जब पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा तो नो करंट विल फ्लो, नो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो। जो सेल होता है, बैटरी होता है, उसमें एक क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव रहता है। आप देखिए ना, पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव क्या हाईयर पोटेंशियल देगा, नेगेटिव लोअर पोटेंशियल देगा। तो उसको जब हम लोग कनेक्ट करते हैं वायर से तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है, करंट
करंट चलना, करंट कैरी करना स्टार्ट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉज्ड बाय केमिकल रिएक्शन। ये डिफरेंस रहता है वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है। वो केमिकल रिएक्शन क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करते रहते हैं। हाँ, दोनों में डिफरेंस रहेगा। केमिकल रहता है, फिर केमिकल खत्म हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, तो फिर बैटरी खराब हो जाता है, वो सेल क्या होता है, खराब हो जाता है। सेल का फंक्शन क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। अभी देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। तो क्या बताया, amount of work done to carry a unit positive charge from point A to point B is called electrical potential difference between the two points। हाँ, मैंने क्या बताया था कि कितना काम करने पड़ रहा है, कितना एनर्जी, काम मतलब एनर्जी लग रहा है किसको, एक पॉजिटिव चार्ज मतलब करंट का डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन दोनों सेम है ना। तो एक पॉजिटिव चार्ज या करंट को लेके आने में कहां से A टू B, A से B लाने में कितना वर्क डन करने पड़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे बिटवीन टू पॉइंट, वो दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या बिटवीन टू पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, वर्क अपॉन टोटल चार्ज ट्रांसफर, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, वर्क अपॉन टोटल चार्ज ट्रांसफर। इससे हम लोग क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, वी कैन गेट इट। वर्क का फॉर्मूला क्या यूनिट क्या है, जूल है, वर्क का यूनिट जूल है, और चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम है, और पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट है यूनिट। तो सबका वैल्यू पुट करते हैं। तो ये सिंपल ये वर्क को W से लिखते हैं, चार्ज को Q से लिखते हैं, और V में पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इक्वल टू W अपॉन Q, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। अब J यहाँ पे लगा, J मतलब जूल, वर्क का यूनिट क्या है, जूल, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, और वोल्ट का यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, वोल्ट। 1 वोल्ट किसको बोलेंगे, जब 1 जूल का वर्क डन हुआ है ना, 1 SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वोल्ट है। तो 1 वोल्ट कब बोलेंगे, और ये वोल्ट किसके नाम पर रखाया, अलेक्जेंड्रो वोल्टा। उसने क्या किया था, सबसे पहले एक सेल बनाया था, सेल बैटरी बनाया था, उसी के नाम पे उसके रिस्पेक्टिव क्या रखे, उसका नाम वोल्ट रखे, पोटेंशियल डिफरेंस का नाम, यूनिट का नाम वोल्ट रखे। तो ये सेल बनाया था, ये वाला सेल इसने बनाया था, सबसे पहले जो सेल बना वो अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने बनाया। इसके बड़े बड़े यूनिट है, स्मॉल यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की। 1 मिली वोल्ट कितना है, 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट है। मिली आपको मीनिंग मालूम होगा, माइक्रो 10 टू द पावर माइनस 6, ये और छोटा हो गया। हाईएस्ट यूनिट क्या है, किलो वोल्ट, उससे बड़ा मेगा वोल्ट 10 टू द पावर 6। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है हाइड्रो पावर प्लांट में और न्यूक्लियर पावर प्लांट में, वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, इतना ज्यादा रहता है, मेगा वोल्ट में रहता है वहां पे। While large value are expressed in unit as kilovolt and megavolt। फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं बताया था बोर्ड पे, वापस से डायग्राम स्लाइड आया तो देख लेते हैं। ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है ना, इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं। जो सबसे आखिरी का ऑर्बिट होता है, लास्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं। उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे ऑर्बिट दूर हो रहा है न्यूक्लियस से, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में। पॉजिटिव चार्ज इस तरह का, प्रोटॉन यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का, तो वो चार्ज होता है वीक होते हैं, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे और कम हुआ, यहाँ पे और कम हो गया। तो ये वाले बैलेंस इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है न्यूक्लियस का सबसे कम होता है। तो चांसेस आर देयर कि ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है जिसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, चांसेस आर देयर दे कैन कम आउट, वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आ सकते हैं। तो ये जब बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है,
करंट कंडक्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसमें मिलता है? मेटल में मिलता है, नॉन मेटल में नहीं मिलता है। नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। This is called as free electron. Negative charge of the electron also get transferred as a result of motion. Negative charge of the transfer हो रहा है। करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर, वायर में करंट कैसे जा रहा है? If a conducting wire is not connected to a cell, the free electron वायर कॉपर है, कॉपर मेटल है, कॉपर क्या मेटल है, तो इसके अंदर पहले इलेक्ट्रॉन था, हाँ था। तो पहले से जो इलेक्ट्रॉन था ना वो क्या हो रहा है? इधर उधर घूम रहा है। जैसे पानी का बॉटल ये थे तो वाटर मॉलिक्यूल क्या था? इधर उधर घूम रहा था। मैंने क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और ट्यूब से कनेक्ट कर दिए, ट्यूब से कनेक्ट कर दिए तो वाटर के मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो गए थे। तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, लेकिन वो इधर उधर घूम रहे, इधर उधर रैंडम मोशन में घूम रहे। जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाते और वायर से कनेक्ट करते तो क्या होते हैं? वो एक डायरेक्शन में जाने स्टार्ट होते। कौन? इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में सब जाने स्टार्ट होते हैं। एक डायरेक्शन में जब फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। हाँ, लेकिन वो क्या होता है? अपोजिट होता है। जब करंट इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है डायरेक्शन में उसको क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। करंट में क्या होता है? एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, लेकिन करंट का डायरेक्शन उसको अपोजिट लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से, मोशन ऑफ डायरेक्शन से, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से करंट का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है। ये माने थे हम लोग अजम्पशन किए थे। तो क्या हो रहा है? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन था, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ये इधर उधर घूम रहे। जब हमने क्या किया? वायर से कनेक्ट किए, यहाँ पे था, सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन था। अब सेल क्या करता है? केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता था। तो ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मूव होना स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है क्या? ऐसा नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन तो बहुत है, बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करते हैं? सपोज लाइन से इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? सब लाइन से अरेंज हो जाते हैं। जब पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं तो लाइन से क्यू में इलेक्ट्रॉन अरेंज हो जाते हैं। तो एक तो दूसरे को धक्का दिया, दूसरे तीसरे को, तीसरे चौथे को, ऐसे इस तरह से जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? यहाँ पे पहुंच जाते हैं और हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट समझ में आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है when we connect the end of the wire of the two terminal of the cell, electric force acts on the electron. टर्मिनल है पॉजिटिव नेगेटिव। जब हम लोग क्या किए? वायर से कनेक्ट कर दिए तो क्या हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस तो था दोनों का। अब पोटेंशियल डिफरेंस को क्या मिल गया? इलेक्ट्रिक फोर्स मिल गया। अब ये फोर्स क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर लेके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है। करंट किधर से देखो? इधर दिखा रहा है, करंट इधर से इधर आ रहा है। करंट इज कमिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है। Being negatively charged, they start moving from negative lower potential to positive higher potential. ये आपको मालूम होगा। Due to the flow of electron, current start to flow through the wire. जब करंट इलेक्ट्रॉन मूव होता है डायरेक्शन में तो करंट भी मूव होता है। The motion of electron is irregular, but there is a definite non-zero value to the average velocity. इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है डायरेक्शन में। हाँ देखो यहाँ पे ज़्यादा अच्छी क्लियर है। करंट ये नेगेटिव में था, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो रहा है? मूव हो रहे हैं, पॉजिटिव में जा रहे हैं। अब ये तो कंडक्टर है, ये कंडक्टर कौन है? वायर। वायर क्या कंडक्टर है? जो इलेक्ट्रॉन को पास करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन को करंट कंडक्ट करेगा, करंट
इलेक्ट्रॉन को पास करेगा तो क्या कहेंगे, उसको कंडक्टर कहेंगे। तो दिस इज अ कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, वायर होता है, मेटल, ज्यादातर मेटल कंडक्टर होते हैं। अभी करंट को डिफिनेशन क्या है, करंट क्या होता है, करंट किसको बोलेंगे कि एक चार्ज जो है एक कंडक्टर से जा रहा है, एक टाइम में कितना चार्ज जा रहा है, एक टाइम में कितना चार्ज जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, करंट क्या बोलते हैं। करंट को आई से जनरेट करते हैं, सी से नहीं, आई से करंट को जनरेट करते हैं। आई लिखा है मतलब करंट है वो। तो एक टाइम में कितना चार्ज जा रहा है, कितना चार्ज जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। Q is the flowing charge. Q is the charge flowing to the cross section of a conductor in a time t. तो करंट कितना हो गया, Q upon t. I is the current, Q is the charge and T is the time. कितना चार्ज एक टाइम में गया उसको क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस का, करंट का, बहुत इंपॉर्टेंट है। SI यूनिट ऑफ करंट में चार्ज इज कूलम, कूलम को C से लिखते हैं और चार्ज को Q से लिखते हैं। करंट इज एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर, करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर, और A से एम्पियर को डिनोट करते हैं, A से एम्पियर को, I से करंट को। अब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, इतना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का चार्ज होता है। और एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो आप इसको मैथमेटिकली कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इतना, इतना चार्ज, तो 1 कूलम इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, तो 6.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 18 के आसपास कुछ होता है, 10 टू द पावर 18, तब बिलियंस होता है, एक कूलम में बिलियंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कॉपर वायर, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलते हैं। एम्पियर, 1 एम्पियर किसका बोलेंगे, 1 एम्पियर सेट टू द फ्लो ऑफ कंडक्टर इफ 1 कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में पास हुआ, हर सेकंड में पास हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है। एक कूलम चार्ज ना हर सेकंड में पास हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। तो 1 A इक्वल टू 1 C अपॉन S। स्मॉलर यूनिट क्या है, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, 10 पावर -3 A एंड 10 पावर -6 A, ये मिली है। और इवन दो इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इज टेकन टू बी अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से अपोजिट होता है, फ्लो फ्रॉम, करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखते हैं थोड़ा एग्जाम, क्या क्वेश्चन बोला, करंट कितना है, 0.4 एम्पियर है, फ्लो थ्रू कंडक्टर, कितना कंडक्टर के थ्रू पास हो रहा है, कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। हाउ मच चार्ज वुड हैव पास थ्रू द कंडक्टर, कितना चार्ज पास हुआ, तो हमें करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और चार्ज फाइंड करने का है। तो मैं देखो यहाँ पे करंट टाइम का यूनिट क्या है, 5 मिनट, तो मिनट इज नॉट द SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ टाइम इज व्हाट, सेकंड ना, तो मुझे टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करने पड़ेगा। अब फिर बाद में फार्मूला पुट करेंगे, आई विल गेट द आंसर। लेट्स सी हाउ दे आर डूइंग। तो टाइम को सेकंड में, दिस इज द करंट गिवन 0.4 एम्पियर, टाइम को 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिए, 60 मींस 300 सेकंड हो गया। फॉर्मूला क्या है इसका, I इक्वल टू Q अपॉन T, करंट का फॉर्मूला था, तो Q इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय T, क्या होगा, नीचे तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई किए तो 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 300 इक्वल टू 120 कूलम। इतना चार्ज क्या है, इतना चार्ज पास हुआ, चार्ज पासिंग टू द कंडक्टर इज 120 कूलम पास हुआ चार्ज।
अब देखिए रेजिस्टेंस एंड ओम लॉ, ये क्या है? अब ओम साइंटिस्ट था, जर्मन साइंटिस्ट था जॉर्ज ओम, उसने ये रिलेशनशिप बताया। क्या बताया उसने? कि करंट जो पास हो रहा है कंडक्टर से और पोटेंशियल डिफरेंस है ना कंडक्टर के बीच में, एंड में, उसके बीच में रिलेशनशिप बताया। ये दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। करंट इज आई एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज वी। ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ बोलते हैं। ओम्स लॉ बोलते हैं। देखिए रिलेशनशिप, ये जर्मन साइंटिस्ट ने इसको ड्राइव किया था, जॉर्ज ओम। उसने क्या बताया कि एक वायर था, वायर के कंडक्टर क्या हो रहा है? करंट पास होगा। अगर वायर नहीं रहेगा तो करंट पास होगा नहीं होगा। अगर वायर मतलब वायर क्या है? यहाँ पे कंडक्टर है। वायर के फिजिकल स्टेट को क्या करते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। इसका मीनिंग मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ। फिजिकल स्टेट मतलब उसका टेम्परेचर, एरिया, लेंथ और उसका खुद का प्रॉपर्टी। इसके ऊपर हम लोग जाएंगे बाद में। ओके, इसको क्या करते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। किसको? फिजिकल क्वांटिटी को। इसके फिजिकल स्टेट, किसकी? कंडक्टर वायर को। तो बोला उसने कि करंट जो है, करंट आई इज क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी से। क्या है? मतलब ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो ज्यादा करंट पास होगा। हम लोग किए थे एक्सपेरिमेंट, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस था पानी का तो ज्यादा करंट पास होगा। तो ये रिलेशनशिप बताया। किसने बताया था? ये जॉर्ज ओम ने। क्या रिलेशनशिप बताया उसने? कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा करंट पास होगा। तो करंट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर से पास होगा, है ना? जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा करंट पास होगा। ये किसने बताया? जॉर्ज ओम ने बताया, साइंटिस्ट ने। द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, ये लॉ है। Current I flowing through it is directly proportional to the potential difference between its two ends. Potential difference जितना ज्यादा रहेगा I इक्वल टू V। I किसके ऊपर डिपेंड है? V के ऊपर। अब ये क्या करते हैं? ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसको इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मैथ्स में एक कांस्टेंट पुट करते हैं। क्या करते हैं? कांस्टेंट पुट करते हैं। उसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो हम लोग ज्यादातर के मानते हैं, के, और उस के को अलग नाम दे सकते हैं। अलग अलग वैल्यू में, अलग अलग लॉज में अलग अलग वैल्यू होता है के का। के इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इक्वल करने के लिए डाला जाता है। अब के का वैल्यू निकालेंगे। क्या क्या मैंने ये जो के इधर क्या है? मल्टीप्लाई है ना, बी से ये इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये इधर आया तो क्या हो गया? 1/k हो गया। आई मल्टीप्लाई बाय 1/k इक्वल टू वी। 1/k को क्या बोला जाता है? आर बोला जाता है, माना जाता है आर। व्हाट इज द आर? आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आर क्या है? रेजिस्टेंस है। मैं इसके ऊपर आऊंगा डिटेल में कि आर का डेफिनेशन क्या है। तभी क्या हुआ? 1/k को क्या बोलते हैं हम लोग? आर बोलते हैं। ये क्या था? ये क्या था? ऊपर कांस्टेंट था। जब इधर आया तो क्या हो गया? ये 1/k हो गया। और 1/k को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ये तो क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। इसका फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, आई आर। ये पूरे 1/k की जगह पे मैं आर लिख सकता हूं। यस, ऐसा ऐसे भी कर सकता हूं, बी इक्वल टू आई आर, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसा आपको फॉर्मूला बार बार चेंज होगा। या तो सिर्फ आर का वैल्यू निकालने का है तो आर इक्वल टू बी अपन आई कर सकते हैं। यहाँ पे आई मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या होगा? बी अपन आई होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ओम्स लॉ। तो एसआई क्या है? रेजिस्टेंस का क्या है? एसआई क्या है? रेजिस्टेंस का ओम है। क्या है? ओम है। इसका सिंबल है क्या? ऐसा सिंबल है, उल्टा जो घड़ा होता है ना, मटका, वैसा सिंबल है ओम का।
ओम किसका यूनिट है? रेजिस्टेंस का यूनिट है। वो जो साइंटिस्ट था ना, जो थ्योरी दिया ना, उसके नाम पे इसका यूनिट रख दिया, उसके नाम पे इसका यूनिट रख दिया, इसका रेजिस्टेंस का क्या है? ओम है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है? वोल्ट है। करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम है। दिस इज द सिंबल। If 1 ampere current flows through the conductor, when 1 volt potential difference is applied between it to it. 1 ओम कब बोलेंगे? 1 ओम कब बोलेंगे? जब 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है, किससे? 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 ओम रहेगा। Physical state of a conductor means its length, area, cross section, temperature and material. इसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हाउ इट अफेक्ट। यहाँ पे देखते हैं। अब ये जो है देखो, इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन किससे पास हो रहा था? ये वायर से। वायर यहाँ पे बड़ा करके दिखाया जाता है, आपको दिखा रहे हैं, इतना बड़ा वायर तो होता नहीं है। फिर इलेक्ट्रॉन, जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? रैंडम मोशन हो रहा था, है ना। अभी क्या एम्प्टी है इसमें? नहीं, इसमें क्या क्या है? बात करते हैं एटम है, आयन से, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, सामने जा रहे हैं, इसको एटम से टकराएगा, टकराया, इधर आयन से टकराएगा, तो उसको क्या होगा? रुकावट आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन है। आप क्या करते हैं? बिजी रोड पे जाते हैं चांद रात में, तो आपको क्या होगा? डिफिकल्टी होगा चलने में, इससे टकरा रहे, उससे टकरा रहे, बाइक वाले से, गाड़ी वाले से। उसी तरह इलेक्ट्रॉन को क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस मिल रहा है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है। ये ऑब्स्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, रुकावट। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट होता है। रुकावट किसको? इलेक्ट्रॉन को। क्यों? उसके फ्लो होने में, उसको चलने में, उसको मूवमेंट में, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जो रुकावट आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये रुकावट किसके ऊपर डिपेंड होगा? सपोज रोड बहुत चौड़ा है, वाइड रोड, तो आपको वहां पे गर्दी रहेगा, लेकिन आप आसानी से जा सकते हैं। लेकिन नैरो रोड है, पतला रोड एकदम, शरीफा रोड आपका पतला रोड है, वहां पे चलने गए तो रुकावट ज्यादा होगा। मतलब ये जो इसका लेंथ है, जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का, ये अगर पतला कर दिया हमें तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दिक्कत होगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं पतले वायर में से, तो उसको ज्यादा डिफिकल्टी होगा। ज्यादा चौड़े वायर में जा रहे हैं तो आसानी से जाएगा। मतलब किसके ऊपर डिपेंड है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड है। कौन? रेजिस्टेंस। और लेंथ के ऊपर भी डिपेंड है। बहुत दूर तक जाने का तो ज्यादा क्या होगा? ज्यादा एटम से टकराएगा। थोड़ा सा जाने का तो 10 एटम से टकराएगा। बहुत दूर जाने का तो ज्यादा, 1000 एटम, 10 करोड़ एटम से टकराएगा वो। तो जितना लेंथ रहेगा, उतना ज्यादा टकराएगा। मतलब रेजिस्टेंस क्या है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इससे लेंथ से। लेंथ ज्यादा लंबा, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। अच्छा, एरिया